3 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੇ। ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆ ਰਿਆਨ ਤੇ ਜਾਂ ਇਰਫਾਨ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਰਿਆਨ ਤੇ ਇਰਫਾਨ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਨਾ? ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਥੋੜੀ ਉਮਰ ਦਾ ਵਾ, ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਖਰ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮਈਏ ਸਿੱਟਣ ਡਏ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਉਹਦਾ ਹੀ ਵਾਰਸ ਆਉਂਦੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਦੇ ਫੇਰ ਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਮਗਰ ਉਹ ਸਿਰਬਰਾਹ ਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ? ਅਗਰ ਸੀੜੀ ਤਾਂ ਵੇਚਦੀ ਉੱਪਰ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੀੜੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੀੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀੜੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਸੀੜੀਆਂ ਵਾ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਸੀੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇਖਣ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀੜੀਆਂ ਨਾ ਤੀਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਲੈਂਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ 3 ਟਾਈਮ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਆਇਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਬੱਚਾ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਭਾਈ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮਈਏ ਦਾ ਮਸਨ ਛੱਟਣ ਗਏ 2 ਦਿਨ ਰੱਖ ਕੇ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਦਿਨ ਛੱਟਣ ਚਲੇ। ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬੱਚਾ ਘੱਟ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਾਏ ਉਹਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਭੱਜ ਗਿਆ। 1 ਮਿੰਟ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੱਜੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਫੋਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਸ਼ੁਏਬ। ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰਿਆਨ ਤੇ ਇਰਫਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਫੜਿਆ ਨਾ। ਹਾਂ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨਿਕਲੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤਿੰਨੋਂ ਮੁਲਵਸ ਨੇ? ਕਾਰੀ ਵੀ ਮੁਲਵਸ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਲਵਸ? ਪਤਾ ਲਾਜ਼ਮਨ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਮਲਵਸ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਆਖਰ ਉਹਦੀ ਸੀੜੀ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਭੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਛਣਾ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਪਾ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਕੀ ਖਿਆਲ ਆ ਹੂੰ, ਕਿ ਬੱਚਾ ਭੱਜ ਗਿਆ ਜੀ, ਬੱਚਾ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਹੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਡਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਰੀ ਛਡਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਾਰੀ। ਸਮਝਦਾ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਡਏ ਆ, ਉਹ ਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਾਰੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੀਸਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਪਹਿਲੀ। ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਥੱਲੇ ਸੀ। ਕਾਰੀ, ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਕਾਰੀ ਦਾ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਅੱਛਾ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ? ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਢੁੰਮੀ ਪਈ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਬੱਚੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਗਲਤ ਆਦਮੀ ਨੇ। ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਾਰੀ ਅਫਵਾਹ ਉੱਥੋਂ ਫੈਲਾਈ ਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਗਲਤ ਅਫਵਾਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖੋ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ DNA ਟੈਸਟ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ? ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਛਿੱਤਰ ਛੁੱਤਰ ਤੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ DSP ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ, ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਾਲੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। मदरसों में ये आलम है कि लोग बच्चों के साथ बदफेली होती है, बदज़्यादती होती है। और दूसरी बात ये है कि अक्सर यहाँ भी नहीं है, कई जगहों पे ऐसे हो चुका है कि अक्सर जगह पे ना वो बच्चों के साथ ज़्यादती होती है। तो पहली तो बात ये है कि जो है ना ये मदरसे वगैरह ये तो ख़ुद हुकूमत को जो है अपने कंट्रोल में रखे। और दूसरी बात क्या है, यहाँ पे ना बहुत सख्त सिक्योरिटी भी होनी चाहिए बच्चों की हिफाजत के लिए, ठीक है। और तीसरी बात ये है कि जो भी बच्चे हैं अब मदरसे में पढ़ते हैं ना, जो मदरसों पर रहना चाहते हैं ना, वहाँ पे जो अक्सर बच्चे दूर दराज से पढ़ने आते हैं, वहाँ पे उनको रुकना नहीं चाहिए। ऐसा हो कि सुबह बच्चे हैं और शाम को अपने घर जाएं। एक तो बच्चे की सेफ्टी है। आउट ऑफ सिटी से आते हैं, दूसरे शहरों से आते हैं, उनका क्या? सर आउट ऑफ सिटी से यही है ना, जो बच्चे आलम हाफिज बनना चाहते हैं ना, वो इन्हीं बच्चों की वजह से खौफजदा हैं। जिस दिन वो उसको मारा है ना, उससे 2-3 दिन पहले उसके ना वालिद साहब आए थे बच्चे के। अच्छा, तो उन लोगों ने आगे दरवाज़ा खटकाया, 9 बजे का टाइम होगा, सुबह 9 बजे? नहीं रात। रात। अच्छा, तो कहते वही 2 बच्चे आए हैं, वो जो जिन लोगों ने साथ रेहान और इरफान? हाँ जी। अच्छा, उन लोगों ने कहा कि अब नहीं बंद होगा, ये 9 बजे बंद होना, मदरसा बंद हो गया है, अब सुबह आना, आप सुबह देना जूस इन्हें। उस बच्चे के वालिद को? हाँ जी। अच्छा, वो चले गए शुएब के वालिद? हाँ जी। तो उसके वालिद साहब ही कह रहे थे कि ये सुबह 4 बजे कैसे खुल गया मदरसा, जिस दिन इसे फेंका है वहाँ पे। सुबह 4 बजे की वीडियो आई थी ना CCTV में, अच्छा, जब उसे लेके जाते हैं। अच्छा। कारी कह रहा है कि बच्चों के पास चाबी थी। चाबी किसके पास होती थी, आप लोगों को पता है? कारी साहब के पास, उसके अलावा कोई खोल ही नहीं सकता। अच्छा। कारी साहब ऊपर होते थे ना, अच्छा, तो चाबी उनके पास होती थी। अच्छा, तो उस दिन 4 बजे खुला है, तो कारी साहब अच्छा। आप कह रहे हैं कि रात के 9 बजे
बच्चे के वालिद आए हैं शुएब के, हाँ जी। तो दरवाज़ा नहीं खुला नहीं खुला। कि कारी साहब के पास चाबी है, सुबह आना आप। हाँ जी, सुबह आना। तो सुबह 4 बजे कैसे दरवाज़ा खुल गया? बच्चे जब लाश फेंक के आए हैं। हाँ जी, उस दिन कैसे खुल गया उसके वाले साहब कहते हैं दरवाज़ा। आपको क्या लगता है, आप इधर लोकल हैं, कारी का कैसा बिहेवियर कैसा था? बच्चों के साथ तशद्दुद करता था, मारता था। आगे भी उसने एक बच्चे का बाजू तोड़ा। जी मारता था वो, कभी कभी उनके साथ जाते हुए देखा है, कभी करते हुए उन्हें। और उन्होंने कई दफ़ा जब लाश छोड़ के गए थे उन्होंने देखा था, उन्होंने शुएब से कहा था कि डरा हुआ था जब मुझसे मिले था। असर की नमाज़ पढ़ाई थी, मेरे साथ बैठा हुआ था, वो मुझे कह रहा था क्या कर रहा है। मैंने कहा डरे क्यों? कहते वो कह रहे तुम्हें हथकड़ियों में डाल देनी है। कौन कहता है? शुएब कह रहा था। शुएब जो बच्चा फोत हो गया? नहीं, उसका भाई जो इंसान नमाज़ पढ़ाता था, रेहान मुलजिम। जी। अच्छा, रेहान क्या कह रहा था आपको? मेरे साथ बैठा हुआ था, नमाज़ पढ़ रहा, असर की नमाज़। कहता मैं डरा हुआ हूँ कि मुझे हथकड़ियाँ ना डाल दे। अच्छा, फिर मैंने उसे हौसला दिया, मुझे कहा नहीं काम करेगा। वाकई के बाद की बात है? जी, पहले की बात है। पहले की बात है। पहले क्यों डरा हुआ था? हाथ करिए। पता नहीं, कहता मैंने सारा सच बताया। बाद में उन्होंने कहा हाथ करिए डाल देनी, फिर मैं वो कहता मैं डर गया था। अच्छा, जो रेहान है आपके साथ असर की नमाज के वक्त बैठा हुआ था, क्या कह रहा था आपको? कि मैं डरा हुआ हूँ, जी। मुझे हथकड़ियाँ लगा देंगे। किसने कहा था उसको हथकड़ियाँ लगाने? वो एसपी साहब आए थे खुद। एसपी आए थे। जी। तो उन्होंने सारे बच्चों की छानबीन तफ्तीश की होगी। जी। तो उसके बाद वो डरा हुआ था। जी। फिर वो अगले दिन उनको पता चला कि उसने भी बच्चा को पहन के आया है। वो CCTV फुटेज आ गई, उसमें वो दोनों बच्चे आ गए। इंटेरोगेशन की तो हमें पता चला कि बच्चों ने ना बच्चे को कत्ल करके कारी के उकसाने पे बच्चे को गंदे नाले में फेंक दिया लाश। ये नाज़रीन, SHO बटाला पुलिस स्टेशन मेरे साथ मौजूद हैं। ज़हीर भाई, मुझे बताइएगा क्या मामला हुआ? 12 साल शुएब, किसने जान लिया उसको? ये 15 पे कॉल चली थी संडे वाले दिन कि मेरा बेटा मदरसे में पढ़ता तो लापता हो गया है। तो हमने उस पर कार्रवाई शुरू की, फ़ौरन उसकी FIR दी। FIR देने के बाद हम ढूंढना शुरू कर दिया कैमरास की मदद से, बाकी लोकल सोर्सेज से। ढूंढते ढूंढते मंडे वाले दिन हमें दोपहर को किसी लोकल सोर्स से इन्फॉर्मेशन मिली कि बच्चे को मर्डर करके कहीं नाले में फेंक दिया गया। पहले CCTV फुटेज नहीं देखी आपने? CCTV फुटेज जो थी वो बाद में हमें मिली ना। अच्छा। वो वाली जिस रूट से वो लेके गए हैं। अच्छा। जिस रूट से हमें कारी ने बताया या बच्चों ने बताया कि इधर को भागा है, हम तो उस रूट से पैदल देखना शुरू किया। लेकिन उस रूट पे हमें कहीं पे बच्चे की भागने की जो है वो ना कोई क्लू मिला, ना वीडियो मिली। उसके बाद नेक्स्ट डे जब हमें थोड़ी सी लोकल सोर्स से इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी हमें मिली, तो हमने फौरी एक्शन लेते हुए जो है वो उसको अपने सीनियर्स के नोटिस में दे के कार्रवाई शुरू की। बच्चों को पकड़ा, दोनों। पहले आपको डेड बॉडी मिली? नहीं, पहले हमने बच्चों को अरेस्ट किया। अच्छा। अरेस्ट किया, बच्चों को अरेस्ट किया। बच्चों ने पहले इधर की कहानियाँ बनाते रहे, कभी कहीं की कभी कहीं की। उसके बाद जो है हमने जब इंटेरोगेशन की तो हमें पता चला कि बच्चों ने ना बच्चे को कत्ल करके कारी के उकसाने पे बच्चे को गंदे नाले में फेंक दिया लाश। फिर उन्होंने जिस रोड से बताया कि हम साइकिल पे डेड बॉडी ले गए, जब हमने वीडियोज़ कलेक्ट की तो हमें वो इन्फॉर्मेशन जो पक्की हो गई कि आया बच्चे की डेथ हो गई है। उसके बाद हमने जाके क्रेन्स के ज़रिए और बाकी लोकल पीपल्स के ज़रिए जो है लोगों के ज़रिए हमने नाले में ढूंढना शुरू कर दिया। उसमें पानी तेज़ था, गंदा नाला है, और ये जिस एरिया से गुजरता है इर्द गिर्द पूरे इस फैसलाबाद के इस एरिया का सारा पानी उसमें जाता है। तकरीबन 3 से 3.5 किलोमीटर जो बाड़ी ट्रैवल कर गई, और यहाँ से आगे जाके 3-3.5 किलोमीटर आगे जाके ना वो एक नाले का होल था, उसमें फंस गई। उसमें से हमने निकाली बॉडी निकाल के जब हमने देखा वो वही जो थे वो बैग जिसमें पैक किया था, बाकी चीज़ें थी, उससे हमारी चीज़ें पक्की हो गई। उसके बाद हमने इंटेरोगेशन की। इंटेरोगेशन में आया कि जो कारी साहब थे उनके जो मामला थे बच्चों के साथ वो अच्छे नहीं थे। इस वजह से 2 बच्चे जो क्या कारी बद किरदार थे? कारी साहब जो है उनका करैक्टर जो है वो मशकूक था इस मामले में। अच्छा, ये आपको किससे कहा? वो हमें जो है बच्चों ने बताया, साथ वालों ने इंटेरोगेशन की। इंटेरोगेशन में कारी ने भी कुछ चीज़ें हमें बताई जिससे हमें हमारी जो वो इंटेरोगेशन में हमें पक्का हो गया कारी साहब जो हैं इसमें मुलव्वस हैं। उसके बाद हमने फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हमें पता चला वो बच्चा लाइक था थोड़ा, और कारी साहब उसको लाइक जो पसंद करते थे कि बच्चा लाइक है, जैसे आम मदरसों में स्कूल में होता है जो उस्ताद के टीचर के क्लोज होता है बच्चा जो लाइक होता है। बच्चे जो साथ वाले दोनों थोड़े नालायक थे, उनका हिफ्ज़ करने में जो उनको सपारे बोलते थे, उन्होंने फिर जो उस रंजिश की बना पर कारी ने थोड़ा सा उकसाया उन्हें, बच्चों को। क्या उकसाया? यही कि ये है क्योंकि कारी का करैक्टर ऐसा था। अच्छा। कारी ने वो ऐसे जैसे बच्चों का वो क्योंकि भरे हुए थे बच्चे कि ये कारी के ज़्यादा क्लोज है, हम नहीं क्लोज, हम नालायक हैं, ये लायक है। थोड़ा सा उसमें जल्दी में तेल का काम किया कारी ने। जब वो किया तो बच्चों ने का ज़हन, छोटे बच्चे थे वो भी 14-15 साल के, उनका ज़हन माउफ हो गया। उन्होंने उठाया बच्चे को, बांधा रस्सी के साथ, उसका गला जो है दबा के उसे कत्ल कर दिया। उसके बाद वो उन्होंने बोरे लिए जो हम प्लास्टिक बैग जिसे कहते हैं वो लेके ले जाकर उन्होंने वो नाले में लाश फेंक दी।
अच्छा, बच्चों ने सारा खुद किया या कारी उनके साथ मुलव्वस है सारी? कारी उसमें मुलव्वस है। कारी कैसे मुलव्वस? एक तो देखिए ना, कारी का किरदार, अच्छा, उसके बाद कारी के मामलात बच्चों के साथ, उसके बाद कारी का थोड़ा सा जल्दी के तेल का काम करते हुए उन्हें उकसाया। कैसे उकसाया? बस यही जैसे चीज़ें होती हैं कि ये बच्चा जो है ये उसे डर था कारी को कि ये अपने घर ना बता दे कि मैं जो हरकत सकनात मेरी हैं बच्चों के साथ। अच्छा। ये घर बताएगा, मेरा पोल खुल जाएगा, मैं मदरसे कारी उस बच्चे को, शुएब को हरास करता था? हरास करता था। अच्छा, तो उसका बस ज़हन था कि कारी का कि ये अगर मेरा पोल खुल गया तो मेरे सारे मामला जो हैं डिस्टर्ब हो जाएंगे। अच्छा। इस वजह से कारी ने जो है उनके जो मोहल्लेदार है जिनसे हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि कारी के पास चाबी होती थी और वो एक बच्चे के पेरेंट्स, बच्चे के वालिद साहब एक दिन पहले कोई जूस वगैरह देने आए हैं तो दरवाज़ा नहीं खुला रात के 9 बजे कि सुबह खोलेगा फजर के टाइम, चाबी कारी साहब के पास। बिल्कुल ऐसी कारी के पास होती है। सुबह भी कारी ने खोला दरवाज़ा, जो लाश लेके गए, लाश लेके गए, कारी ने खोला कहा गया 2 दिन लाश उनके घर पड़ी थी। नहीं, संडे वाले दिन बच्चा गायब हुआ सुबह फजर टाइम। मंडे वाले दिन जो है हमने उसे ढूंढ लिया। मतलब कि अगर एक रात गुजरी है, एक रात उनके पास नहीं, लाश बॉडी नहीं उनके पास थी। बॉडी तो उन्होंने मारने के फ़ौरन बाद जाके नाले में फेंक दी। फौरन बाद की वो फ़ौरन जो फुटेज आई फुटेज है है वो तो संडे वाले दिन सुबह की है। संडे सुबह की। संडे सुबह किया जब वो बच्चा गायब हुआ, उसके बाद की फुटेज है। जब हमने इंटेरोगेट किया, उन्होंने बच्चों ने बताया कि हम इस रूट से गए हैं। उस रूट पे जब हमने कैमरे चेक करने शुरू किए तो उसमें आई जो संडे सुबह की है वो। आपको बच्चों पर कैसे शक हुआ, कैसे शक हुआ? बच्चों ने अपना किसी एक साथ वाला बच्चा था, उससे थोड़ी सी बात डिस्कस की। उसने अपने वालिद से बात की। वो वालिद जो है वो अक्लमंद था, पढ़ा लिखा था। उसने वो आके हमें मुझे बताई, मेरा नंबर लेके कहीं से मुझे कॉल की। उसने मुझसे बात की कि इस तरह है मामला। तो मैंने फ़ौरन अपनी टीम को लिया, हम मौके पे चले गए क्योंकि एक दिन पहले तो बच्चे की अगवा की FIR हुई थी। फिर हमने जब शुरू की वो चीज़ें, वो गुंजल खोलते खुलती गई वो चीज़ें। छोटे से बच्चे कितनी बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं? बस जब बच्चों का ज़हन बन जाए, 14 साल एक उम्र तो छोटी है लेकिन बच्चे ज़हनी तौर पे तैयार थे इसके लिए। जो उन्होंने किया है आपस में की बनती नहीं थी। उन्होंने कह लें कि जो भी किया उस वक्त उनका ज़हन जो आउट हो गया, उन्होंने कर दिया इसको।